So today we learn about the remaining two BLAST programs which are uh, available with us. So in the last lecture we have covered nucleotide blast, then protein blast and blast X. Today we'll cover T blast N. Okay. Now what is a T blast N that we'll see? T blast N is just a reverse of what you can say T blast X. So what is that? What we have to learn? Here we will search a translated nucleotide database using a protein query. Now, what is this? If we have a protein sequence in our hand and we wanted to find out what is the exact mRNA of that particular protein, then this program has been used. So T-BLAST-N is actually used to determine the exact CDS or coding sequence of the mRNA or the mRNA, and even you can search the gene sequence by using this approach. So for that you need to have a protein sequence in your hand, and that protein sequence you can incorporate into the region here. As I already told you, protein sequences can be obtained from various sources. One, it could be your own sequence which you have obtained from the MALDI-TOF or the protein sequencing approach, or you can obtain it from the third party. Here we will obtain it from the third party by using NCBI so that you will be able to understand it. I'm just always showcasing these steps because it is required. So we'll obtain one protein sequence which is of our interest. So for that we'll reach to the protein database. We want one particular protein, for example isomerase. I want isomerase isolation. So this is the link for the different isomerases which we are trying to investigate. Any of that will work for us. For example, I am working with this, that is cyclocalcicus pugati. I want the sequence of it. So consider this is my protein. Somebody has given you, or even you have downloaded it from the third party, and now it is ready for the analysis. So I have given it as an input. Now I wanted to know what is the exact mRNA or the coding sequence for this particular protein, and for that only we have to use T-BLAST-N. So what is happening here that we need to understand first. Here what they are saying, that you give a query of a protein and you compare it with the nucleotide database. Now how could this be possible? Because protein cannot be compared as such with the nucleotide database. So to do that, what will happen first? Your protein sequence, your protein sequence will be checked out for the protein homology. Okay, so there will be first protein blast. Then the protein which is coming out from the blast program through the database, which is also known as subject protein, will be getting transcribed back. Okay, will be getting transcribed back based on the open reading frame concept which we have learned last day, and from that that protein will get translated to nucleotide, and then that nucleotide homology will give you a nucleotide mRNA from which it has been coded. Okay, so this is slightly reverse actually. So first क्या होगा, आपका प्रोटीन सीक्वेंस मिलेगा, प्रोटीन सीक्वेंस से जिस प्रोटीन से वो मैच करेगा वो प्रोटीन को रिवर्स ट्रांसक्राइब किया जाएगा, और उस ट्रांसक्राइब से जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेगा वो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में सर्च किया जाएगा, और जिससे वो मैच करेगा वो मैच का आउटपुट आपको दिखाया जाएगा. ठीक है, सो इट इज समथिंग रिवर्स काइंड ऑफ. ओके, सो सिंपल है वैसे. प्रोटीन को खुद
प्रोटीन का प्रोटीन मैच मिलेगा, प्रोटीन मैच से जो भी मिलेगा उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो आपको mRNA मिलेगा या CDS मिलेगा, और उस CDS का होमोलॉजी हम न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में सर्च करेंगे। ओके, हियर अगेन यू कैन चूज एनी ऑर्गेनिज्म इफ यू वांटेड टू गो फॉर इट। हम उसी ऑर्गेनिज्म का नाम ले लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज हम उसी को पढ़ना चाहते हैं। देन ब्लास्ट इट। If something doesn't come like this, click it from this and blast. So what will happen here that आपको यहाँ पे आपने इनपुट प्रोटीन का दिया है, आपको आउटपुट भी प्रोटीन प्रोटीन ही मैच ही मिलेगा, बट एनालिसिस जो रहेगा वो mRNA के साथ में मिलेगा। दैट इज व्हाट इज द थिंग, नो सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी फाउंड, ऐसा उसको मिला, रिजल्ट्स नहीं मिले उसको। हो सकता है कि इसका मैच वहां पे आपको नहीं मिला हो, या फिर उसका उसका mRNA सीक्वेंस नहीं हुआ हो। ये अगर आपको मिल रहा है यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी फाउंड, इसका मतलब है कि इसका प्रोटीन सीक्वेंसिंग हुआ है पर इसका कोई भी एंट्री mRNA के लिए नहीं है। ओके, सो we'll take another one. This is second protein. So now result has arrived. What kind of result it is, just we need to understand. हमने क्या बोला था कि हमारे पास में प्रोटीन सीक्वेंस है, so this is my protein sequence available in front of us. Now this protein has been coded by a bacterium whose name is Bacillus subtilis. तो कोई मुझे ये बता सकता है क्या कि अगर मेरे पास में इसका प्रोटीन सीक्वेंस है, किसी बैक्टीरिया का प्रोटीन सीक्वेंस है, तो क्या मुझे इसका जीन सीक्वेंस मिल सकता है अगर मैं ये अप्रोच करता हूं तो, कि मुझे सिर्फ mRNA सीक्वेंस ही मिलेगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, तो मुझे इसका जीन सीक्वेंस मिल सकता है इस अप्रोच से अगर मैं करता हूं तो? मैंने पढ़ाया था, अगर आपको यस सर, जीन सीक्वेंस मिल सकता है ना, यानी ये प्रोटीन डायरेक्टली किसी जीन के तरफ डायरेक्ट कर सकता है ना मुझे, कि नहीं करेगा? आपने करेगा सर। क्वेश्चन है क्यों? अगर आप बोलते हैं हाँ तो क्यों करेगा? इसका आंसर हो सकता है, क्या प्रोकैरियोटिक जीन में इंट्रॉन्स होते हैं? इंट्रॉन्स होते हैं क्या प्रोकैरियोटिक जीन में? नो सर, ओनली एक्सॉन्स। ओनली एक्सॉन, तो ये डायरेक्टली उससे मैच कर सकता है ना, क्योंकि वो जो फ्रेम रहेगी उसके बीच में कोई डिस्टरबेंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा, सीधा सीधा एक्सेप्ट हो सकता है। हाँ, इसलिए आपको अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपको उसका मैच मिला, बैसिलस सबटिलिस का ही लिया है हमने, उसके क्रोमोसोम से मैच कर रहा है, यानी आपका ये जो प्रोटीन है ये क्रोमोसोमल जीनोम के साथ मैच कर रहा है। फिर आप बोलोगे सर हमने तो प्रोटीन पुट किया था ना, प्रोटीन जीनोम में कहाँ मिलेगा? प्रोटीन मिल रहा है कि जीनोम में? क्या मिल रहा है हमको? जीन।
यानी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलेटेड जीन, यानी हम क्योंकि प्रोकैरियोट का स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको जीन भी बोल सकते हैं और ये mRNA भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों कोड कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई भी इंट्रॉन नहीं होता। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि यहाँ पे उसने बोला है कि आपका ये जो प्रोटीन है ये 100% मैच मिला, आपके सीक्वेंस का 100% मैच मिला, पर जीनोम पे प्रोटीन का मैच नहीं मिला है। जीनोम पे उस प्रोटीन को जो ट्रांसक्राइब करता है वो जीन का मैच मिला है। मैंने आपको समझाया ना यहाँ पे, देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन खुद को प्रोटीन के साथ मैच करेगा और जो प्रोटीन मिलेगा वो खुद को ट्रांसक्राइब करेगा और वो रीजन न्यूक्लियोटाइड पे ढूंढा जाएगा, तो उसको वो रीजन यहाँ मिल गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ, समझ रहे हैं आपको? तो यहाँ आपका जो प्रोटीन है ये देखिए एम से शुरू हो रहा है और एम पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा 100% मैच हुआ, दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी पार्ट छूटा नहीं है, उसके अंदर कोई भी पार्ट उसमें से लेफ्ट आउट नहीं हुआ है। तो यहाँ क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर आपका प्रोटीन जिसका नाम आइसोमरेज 1 है, आपने उसको बैसिलस सबटिलिस से निकाला हुआ है, तो बैसिलस सबटिलिस का जो ये जीनोम है उसका ये जो रीजन है दिख रहा है 3920105 से 3919272 तक, ये वो जीन है जिसने आपको ये प्रोटीन दिया है। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यानी आप प्रोटीन से उसका जीनोमिक लोकेशन ढूंढ पा रहे, समझ रहे हैं क्या? अगर आपके पास में एक प्रोटीन सीक्वेंस है तो प्रोटीन कौन से जीन ने कोड किया ये आप पता कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो रीजन है जीनोम के ऊपर में 3920105 से 3919272 तक, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये आपके आइसोमरेज को कोड करने वाले जीन का रीजन है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एमआरएनए का भी रीजन है, क्योंकि वो बैसिलस सबटिलिस है। और जो फ्रेम का कोड कर रही है इसको वो कौन सी है? -2 -2 से वो कोड कर रहा है, समझ रहे हैं? तो हमको बड़ी आसानी से उसका जीनोमिक लोकेशन पता चल गया, उसका जीन पता चल गया, ठीक है। अगर आप इस रीजन पे जाना चाहते हो, यानी वो जीन निकालना चाहते हो जिससे ये प्रोटीन मिला, समझ रहे हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। देखो ये जीन बैंक दिख रहा है लिखा हुआ, यहाँ क्लिक कर दीजिए, इसको मैं न्यू विंडो में ओपन करता हूँ। तो आपको बैसिलस सबटिलिस के जीनोम का एक एरिया दिख रहा है जो सिर्फ यहां से यहां तक ही शोकेस किया गया है, समझ रहे? 3919272 से 3920105 तक आपको पीछे नीचे में दिखेगा, दिख रहा है? ये वो रीजन है। और देखो उसने बराबर वही जीन दिया है, दिख रहा है? एमआरएनए दिया है जो आपके पास है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और कंपेयर करता हूं इसके साथ में। देखो यहाँ पे ये मैंने पढ़ाया था ना आपको, इसको मैं फास्टा में कन्वर्ट कर देता हूं, टू चेक, एंटर और पेस्ट, और इसको ब्लास्ट कर देते हैं, देखते वही प्रोटीन मिला क्या हमको? ओके, कुछ एरर हुआ, एरर ये यहाँ पे एरर हुआ, इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी करके इसको सेट करते हैं पहले, क्योंकि वो वहां से ले नहीं सकते अपन उसको डायरेक्टली।
ये रेडी हो गया है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और चेक, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ उसका ब्लास्ट करते हैं। अगर ये दोनों 100% मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर वेरी मच सेम एज पर ईच अदर। अरे हाँ राइट, हमको ब्लास्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, हमको ब्लास्ट भी करना पड़ेगा, ये प्रोटीन है ना। हम वहां नहीं कर सकते टी ब्लास्ट में, हम ब्लास्ट भी करना, हमको ब्लास्ट भी करना पड़ेगा। ये समझना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कितना परसेंट मैच मिला? 100% मैच मिला। यानी आपने टी ब्लास्ट एन का इस्तेमाल करके, टी ब्लास्ट एन का इस्तेमाल करके प्रोटीन के सीक्वेंस के बेसिस पे बैसिलस सबटिलिस का वो जीन ढूंढ लिया जिसने वो प्रोटीन कोड किया, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूं फ्यूचर में, क्योंकि मैं कुछ दिनों बाद पूछने वाला हूं आपको, ठीक है, आपकी टेस्ट होने वाली है, आपको हर एक को मैसेज भेजना है मुझे ग्रुप में, ठीक है, कि अगर वो क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको टाइम दूंगा 5 मिनट और फिर बोलूंगा सबमिट, तो सबको अपना मैसेज सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं रहेगा, आपको हर चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ आपने ये कंफर्म कर लिया कि यस दिस पर्टिकुलर प्रोटीन which belongs to Bacillus subtilis is encoded by a region of this particular सीक्वेंस, ठीक है, इसके कारण वो सीक्वेंस हुआ है। इससे ये भी कंफर्म हो गया कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये आइसोमरेज इनकोड करने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? चलो कोई डाउट नहीं है। अब अगला पढ़ते हैं, दैट इज टी ब्लास्ट एक्स। टी ब्लास्ट एक्स ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें वो क्या बोल रहे हैं थोड़ा देख लीजिए। इट सर्चेस ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, ठीक है, क्या सर्च करता है? ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस यूजिंग ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड क्वेरी। इसका क्या मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि आप एक कोडिंग सीक्वेंस देंगे, यानी एमआरएनए देंगे, वो एमआरएनए खुद को ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में नहीं होगा, सबसे पहले क्या होगा, आप जैसे ही उसको एमआरएनए देंगे वो एमआरएनए मैच करेगा। क्या करेगा? एमआरएनए मैच करेगा, यानी वो अपने मैच ढूंढेगा कि मेरे जैसा सीक्वेंस और कहाँ है, ठीक है। जैसे ही दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, फिर वो दोनों क्या करेंगे, दे विल सिलेक्ट देयर ओन स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड। आपके सीक्वेंस के लिए आपने जो स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड दिया है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है, जो भी जेनेटिक कोड दिया उसके हिसाब से ट्रांसलेट होगा, और डेटाबेस में जो सीक्वेंस है उसको उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो ट्रांसलेट हो जाएगा जो उसके यूजर ने वहां पे पुट की हुई है। रिजल्टेंट क्या होगा? आपका जेनेटिक कोड के बेसिस पे प्रोटीन ट्रांसलेट होगा, एमआरएनए ट्रांसलेट होगा प्रोटीन के अंदर, और उसका उसके जेनेटिक कोड के हिसाब से एमआरएनए ट्रांसलेट होगा प्रोटीन में। फिर जैसे ही दोनों का प्रोटीन सीक्वेंस फॉर्म होगा, वो दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ में अलाइनमेंट दिखाएंगे। समझ रहे? तो इसमें होगा क्या, आप देंगे एमआरएनए और आपको आउटपुट में आएगा प्रोटीन, ठीक है। आपका एमआरएनए सीक्वेंस यहाँ नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपका एमआरएनए किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक सीक्वेंस चाहिए रहेगा। अगेन हम उस सीक्वेंस को लेते हैं,
हमको mRNA ही चाहिए। अब मुझे बताएगा mRNA निकालने के लिए कोई प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है? कोई एक जना बताओ मुझे कि कैसे प्रोटीन mRNA निकाल सकते हैं। मैं एक नाम देता हूं, इस पर्टिकुलर जीन का मुझे mRNA निकाल के दिखाइए। क्या प्रोसीजर है, कोई एक बताएगा ऑन करके? नाम लेना पड़ेगा क्या? अच्छा, तो फिर नाम लेना पड़ेगा। राहुल तुम बताओ, शुरुआत करते हैं राहुल से। राहुल हाटेकर है क्या? ओके, कौन बताएगा कैसे mRNA सीक्वेंस कैसे निकालना है? कैन एनीबडी? अरे बताओ जल्दी जल्दी, यहाँ से क्या कहाँ जाना है मुझे बताइए। सर जीन सर सिलेक्ट जीन करना है। डेटाबेस, हाँ, जीन डेटा। जीन डेटाबेस। इतना टाइम क्यों लगा है? हाँ चलो, जीन में जा रहा हूं मैं। ठीक है। आगे क्या करें, किसको क्लिक करूं बताइए, आप सर बताइए। सब कहाँ क्लिक करूं, कहाँ क्लिक करूं? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, ओके, इसको क्लिक कर दे। अब क्या करना चाहिए? जीन आईडी। हाँ, सर स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन, ओके। मुझे बताते जाना, मैं स्क्रॉल करते रह रहा हूँ। मैं धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ कहीं कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। आप देखो कहाँ करना है, मुझे रोक देना। सर रेफरेंसेस। हम्म, कहाँ? सर स्टॉप। स्टॉप कर सर दो। सर हाँ। अब कहाँ? सर ये mRNA mRNA प्रोटीन mRNA प्रोटीन पे। एनएम हाँ, कहाँ जाऊँ? एनएम जीरो NM। जीरो वन वन टू सेवन सिक्स वन 7.2 पे क्लिक कीजिए। वेरी गुड। समझा ना अभी आपको? किसी ने बोला कि mRNA निकालो तो डरने की बात होनी चाहिए कि अभी? नो सर। नो सर। हाँ, यही चीज है, यही चीज सीखना है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो आपने पैसा दिया है, ये इसी के लिए दिया है ना? ट्रेनिंग के लिए दिया है क्या? नहीं ना, खुद के नॉलेज के लिए लिया है कि आपको पता रहना चाहिए कौन सी चीज कहाँ से निकालनी है। अब क्या करूं? सर सर स्क्रॉल NM। डाउन। स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं। कर दिया, खत्म हो गया। सर ये सीक्वेंस है ना ATGC। इसको ले लूं? हाँ सर। इसको लेंगे तो हो जाएगा क्या काम? चलो ट्राई करते तो। नो सर मतलब सोचो, अभी भी सोचो, कितने बार तो बताएं। सर एक्सेशन नंबर लेंगे। हाँ, एक्सेशन नंबर ले सकते हैं, और क्या चीज ले सकते हैं? फास्टा फॉर्मेट। हाँ, ये याद रखो, ये खुद के दिमाग में स्टेप्स बनाओ, समझे? सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है, आपको आपके ब्रेन को क्वेश्चन पूछते रहना पड़ेगा कि मैं mRNA निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये निकालूंगी। प्रोटीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, निकाल। जस्ट डू द प्रैक्टिस, ठीक है। ये प्रैक्टिस का गेम है पूरा। एक बार दिमाग में बैठ गया ना, फिर कभी नहीं निकलेगा आपके इसमें से। चलो ठीक है, मैं एक्सेशन नंबर ले सकता हूँ। तो यहाँ से ये एक्सेशन नंबर है, ठीक है। ये भी एक्सेशन नंबर है, सेम है, दोनों सेम रहता है। लोकस नंबर, एक्सेशन नंबर सेम होता है, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं। अब कहाँ लेके जाओ, कहाँ लेके जाना है? वेयर वी कैन ट्राई? ब्लास्ट
सर टी ब्लास्ट एक्स। टी ब्लास्ट एक्स Blast. यहाँ पेस्ट कर दूं? यस सर। Yes, sir. आप क्या करेंगे बताओ? ये प्रोग्राम आप ही को बताना है, इसमें आपका पूरा सार है, तुमने जितना भी पढ़ा। क्या करना है अभी, अगला काम क्या है? सर जॉब टाइटल देना पड़ेगा। वो तो ठीक है, दे देंगे। ये दे दिया जॉब टाइटल, ऑर्गेनिज्म। हो जाएगा। पर ये तो सॉल्व नहीं किया आपने। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे बताओ? आपने क्या किया? ये कौन है? कौन है ये? ये कौन है? नेचर से कौन है? डीएनए का कौन सा टाइप है? विच इज दिस टाइप, टेल मी। अभी क्या डाउनलोड किया हमने? अरे बताओ जल्दी जल्दी, जो भी बता रहे थे। ये हमने क्या डाउनलोड किया यहाँ से? क्या डाउनलोड किया? अरे राहुल कौन वो तो बोल रहे हैं, बोलो। कौन बोल रहा था अभी, जो बात बोल रहे थे उन्हीं से पूछते हैं। ऑन करो अपना माइक, दोनों तीनों लोग। Sir, mRNA. हाँ, एमआरएनए डाउनलोड किया ना। तो एमआरएनए को किस में कन्वर्ट करना है हमको? प्रोटीन में। Protein. तो Protein. एमआरएनए डायरेक्टली प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होगा? हमने प्रोसीजर पढ़ी है ना, ये यहाँ पे ब्लास्ट टेक्स में, याद है क्या? Yes, sir. क्या पढ़ा यहाँ पे? स्टेप्स पढ़ी थी ना हमने। यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे जल्दी बताओ। कोई भी एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने के लिए क्या लगेगा? Genetic code. mRNA match. जिसको पता हो ऑन करके बताओ, जो सही बताएगा उसको 500 रुपीज। देखो मैं रहता तो मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि मेरे 4,500 रुपये हो गए थे फीस। जल्दी, फास्ट फास्ट। चलो जान दो, नहीं पता, भूल गए सब लोग, फिर बाद में बोलेंगे अरे यार मेरा 500 रुपये चला गया। क्या करेंगे बताइए? ये कौन से ऑर्गेनिज्म का है? Homo सर sapiens. mRNA मैच ढूंढेंगे क्या इसका? नहीं मैडम, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है ये समझ लीजिए। हमारे पास एमआरएनए है, एमआरएनए से प्रोटीन ढूंढना है, यानी एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। पर कोई भी एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो पाएगा क्या इतने आसानी से? नहीं। हमने ये यहाँ नहीं पढ़ा था ना। तो टी ब्लास्टिक्स में करेंगे सर उसको? नहीं, टीब्लास्ट नहीं एक्स में क्या किया था वो पूछ रहा हूँ मैं, उसमें एक स्टेप की थी हमने पहले। आपको कैसे पता चलेगा कि इसको कौन सा जेनेटिक कोड लगाना है? सर कोडिंग वो सर्च तो किए हैं। कौन सा सर्च किया? सी, इसलिए बोलता हूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज जस्ट लाइक अ अल्कोहल बॉटल। आज रात को पिए, सो गए, सुबह उठोगे ना आप उसी तरह हो जो नॉर्मल पर्सन हो, आपके पास में नशा नहीं रहेगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। इसलिए बहुत ध्यान से हर चीज ध्यान में रखनी है, नहीं तो आप भूल जाओगे वो चीज को। उसमें उसमें दिमाग लगाते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप आज याद रहेगा ना, अगले 5 दिन में भूल जाओगे सब कुछ। इतना टफ है। यहाँ पे सारा गेम प्रोटोकॉल का है, आपको पूरी स्ट्रेटेजी पता रहनी चाहिए हर बार। हमको सिंपल है, हम मैंने आपको आइडिया दिया था ना कि किसी भी जीन को या एमआरएनए को अगर प्रोटीन में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले जेनेटिक कोड ढूंढना पड़ेगा। तो जेनेटिक कोड ढूंढने का प्रोसीजर क्या है? कहाँ जाना पड़ेगा मुझे सबसे पहले? कहाँ जाएंगे? डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस?
कौन सा डेटाबेस? जीनोम हाँ, जीनोम डेटा। जीनोम डेटाबेस में जाके मिल जाएगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पर एग्जैक्ट नहीं है। और एक डेटाबेस पता था, सबसे पहले क्या करना है, इस एमआरएनए का जीनोमिक लोकेशन ढूंढना है कि नहीं? हाँ या ना? इस एमआरएनए का जीनोमिक लोकेशन क्या है, ये पता करना है ना हमको। इस एमआरएनए का नाम क्या है? होमो सेपियंस एल्डोलेस। यानी आपको क्या ढूंढना है अभी बताइए। ऑल्डोलेस का Sir, we have सीक्वेंस। to find gene. हाँ, जीन ढूंढना है। होमो सैपियन अल्डोलेस सर्च करना पड़ेगा सर। कहाँ सर्च करूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। सर ये न्यूक्लियोटाइड को क्लिक करके वहां पे न्यूक्लियोटाइड में जाऊँ, एनसीबीआई में जाऊँ? एनसीबीआई। वो मुझे बताओगे तो ही करूंगा, मैंने तो आज जाने वाला नहीं मैं आगे। एनसीबीआई में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कहाँ जाएंगे? आप बताओ, ऐसा समझो कि आप मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मैं सिर्फ कंप्यूटर हूँ। हाँ, सर जीन ऑल डेटाबेस पे क्लिक करके जीन पे जाएंगे। जीन पे जाता हूँ, ठीक है। फिर सर वहां पे सर्च करेंगे हम होमो सैपियन अल्डोलेस ए। होमो सैपियन अल्डोलेस ए। कर दिया। कहाँ क्लिक करूँ या नहीं क्लिक करूँ? सर लोकेशन वहां पर है, हाँ, क्रोमोसोम 16। वेरी गुड। समझा क्या, दिख गया ना? तो कौन से क्रोमोसोम पे? यस सर। सर 16। क्रोमोसोम 16। अब मुझे ये बताओ, क्रोमोसोम 16 कौन सा जेनेटिक कोड फॉलो करता है? कैसे बता? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। पर आपने बोला, मैं कैसे मान जाऊं? मुझे तो दिखाना पड़ेगा आपको उस चीज को। कहाँ जाऊं? न्यूक्लियर तो कोई जेनेटिक कोड नहीं है, न्यूक्लियर तो जीनोमिक लोकेशन है। आपको मैंने पूछा कौन सा जेनेटिक कोड फॉलो करता है तो न्यूक्लियर पक्का है। अरे इतना तो पढ़ा है हमने, इतना मेहनत करके, जब आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। अरे यार इतना आसान था। मैं तो क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो जीन है जिसका हमने एमआरएनए डाउनलोड किया, वो कौन सा जेनेटिक कोड फॉलो करता है, जस्ट दैट वी हैव टू टेल। कौन सा जेनेटिक कोड फॉलो करता है, कैसे पता करते हैं? सर वो स्टैंडर्ड टेबल नंबर है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? सर क्लिक ऑन द सर सर्च एल्डोलेस, वो जो नेम है सर पहला वाला इस उसमें। पे क्लिक सर करूं? सर्च करो। सर्च करूं, किसको सर्च करूं? ये एल्डोलिस को? यस सर, उस पर क्लिक कीजिए। किया, यस चलो किया। अब ऐसी होने वाला है, अब आपका क्वेश्चन आ रही रहने वाले। जिसको आता रहेगा फटाफट बोलते जाना। हाँ, अब क्या करूं? सर ऑर्गेनिज्म पे क्लिक। ऑर्गेनिज्म पे क्लिक, वेरी गुड। अब सर होमो सेपियंस इन ह्यूमन, वो क्लिक कर दिया। हाँ वो आया ट्रांसलेशन टू। समझा क्या? सबको समझा? पर इसमें यस आपको सर। मेरी मदद लग गई इतना सिखाने के बावजूद भी। इसलिए समझ, इसमें ये समझ लो कि आप अल्कोहलिक हो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एन अल्कोहल। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाओ, ठीक है। एवरी डे यू हैव टू टेक अ सीप ऑफ अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। चलो ठीक है। कहाँ, अब क्या करूं, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा लूं? सर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वन। वन। वन लेना पड़ेगा, समझा क्या आपको? ये जो टी ब्लास्ट एक्स है, ये एक्चुअली इसी के लिए बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है, उसका मेन एम ये है कि मान के चलो, मैं आपको अभी एक सिचुएशन देता हूं कि ये जो एमआरएनए सीक्वेंस आपने निकाला, ये एक ऐसे स्पीसीज का है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी पता नहीं है, नहीं।
हो सकता है कि नई स्पीसीज हो। अब जब नई स्पीसीज है, समझ रहे हैं, जब वो नई स्पीसीज है तो वो एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड फॉलो करेगा। हो सकता है वो जेनेटिक कोड स्टैंडर्ड हो या फिर कोई और हो, है ना। इतने सारे हैं देखो, अलग 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 टाइप के। जैसे देखिए सिलेट न्यूक्लियर है, यूप्लॉइड न्यूक्लियर है, ये है तो न्यूक्लियर जीन के ही प्रोडक्ट, बट अलग अलग जेनेटिक कोड फॉलो कर रहे हैं। तो पहले मुझे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो करना है वो इसके लिए भी करना है कि मैंने जो mRNA यूज किया वो सही जेनेटिक कोड से ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं। ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए हमने इसका फायदा लिया, क्योंकि ये पता है ना ऑलरेडी, ये डेटाबेस में इंफॉर्मेशन रेडी है। ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है जो सब्जेक्ट देगा हम, और हमने जो जेनेटिक कोड दिया वो क्वेरी के लिए दिया, समझ रहे हैं। तो ये जेनेटिक कोड सही है या गलत है ये डिसाइड करेगा ये। अगर उनका मैच बहुत सही हो गया यानी वो वही जेनेटिक कोड फॉलो करते हैं, और अगर वो कहीं गलत दूसरा जेनेटिक कोड फॉलो करते होंगे तो आपको वो सीक्वेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी एक चीज है इसके अंदर। ऑर्गेनिज्म का नाम पुट कर देते हैं, क्योंकि ये होमोसैपियन का है तो मैं होमोसैपियंस लिख देता हूं। ठीक है, इसमें ट्विस्ट कर सकते हैं, मैं निएंडरथैलिस लेता हूं। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा mRNA जो होमोसैपियन का है उसके जैसा कोई mRNA निएंडरथैलिस में भी होगा। तो निएंडरथैलिस का जो mRNA है जब वो खुद को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है और जब ह्यूमन अपना mRNA प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है तो क्या वो दोनों प्रोटीन सेम सीक्वेंस दिखाते हैं या नहीं, है ना। तो कहीं हम सेम है या डिफरेंट है ये भी पता कर सकते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे एंसिस्टर्स है ना। तो हम देखते, चलो करके देखते हैं, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेट्स सी, इसमें पैरामीटर सर्च में थोड़ा छोटा कर देते हैं, शो रिजल्ट इन न्यू विंडो और ब्लास्ट। इसमें थोड़ा समय लगता है, ये थोड़ा ज्यादा समय लेता है यूजुअल टाइम से, तब तक हम समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया। तो ब्लास्ट एक्स में क्या क्या चीजें समझनी है ये थोड़ा दिमाग में रख लीजिए। ब्लास्ट एक्स, सॉरी टी ब्लास्ट एन, टी ब्लास्ट एन, कोई मुझे बताएगा सबसे मेन एम क्या है इसका? फॉर व्हाट वी आर यूजिंग टी ब्लास्ट एन? प्रोटीन प्रोटीन मैच। प्रोटीन प्रोटीन मैच, हाँ बराबर है, ये है प्रोटीन प्रोटीन मैच। पर हमारा इनपुट प्रोटीन है क्या? नो सर, इनपुट mRNA है। इनपुट हमारा है mRNA, राइट। तो आप मुझे बताएंगे mRNA से प्रोटीन तक कैसे पहुंचे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट गए, उल्टा गए, बराबर है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए क्या यूज किया? तो प्रोटीन प्रोटीन ब्लास्ट किया, उसके बाद प्रोटीन नहीं नहीं मैच नहीं नहीं मिल नहीं गया नहीं नहीं उसका। प्रोटीन तक पहुंचे ही कैसे? अभी तो आप mRNA पे हो, पहले mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट तो करो। Sir, first of all, we search in gene database. नहीं 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 नहीं, जीन में कहा जाए, सबसे पहले सर आप, डेटाबेस में सर्च करेंगे ना। हाँ, एक मिनट, किसी का तो भी आवाज आ रहा है, ऑफ कर देंगे क्या? हाँ, mRNA सीक्वेंस है हमारे पास में, सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप बराबर हो, पर उसके भी पहले एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा और रोक दिया। उसका एक सेशन नंबर नहीं, समझ लो आपके पास में एक्सेशन नंबर नहीं है, यानी आपके पास में थर्ड पार्टी सीक्वेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे? मैंने आपको और ट्विस्ट में डाल दिया। आपके पास mRNA है ये कैसे कंफर्म करोगे? आप मुझे बताओ जरा, कोई बता सकता है? मेरा क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बड़ा आसान था, आपने उसका सीक्वेंस उठा लिया और वहां से उसका
जेनेटिक कोड ढूंढ लिया, जेनेटिक कोड से आपने उसको ब्लास्ट कर दिया। पर अब मेरे पास में थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। किसी एक अलग यूजर ने आपको, यानी रियल यूजर ने आपको एक सीक्वेंस दे दिया, ठीक है, और बोला कि दिस इज माय सीक्वेंस, और मैं उसका टी ब्लास्ट एन करना चाहता हूं, ठीक है। 1 minute, I will download one sequence. One minute. Consider a situation here. ये किसी ने आपको सीक्वेंस दे दिया, ठीक है, एकदम रॉ सीक्वेंस है, आपको पता भी नहीं क्या है, सीक्वेंस N2। इसका मुझे क्या करना है, क्या करना है, कौन सा ब्लास्ट करना है? T blast. टी ब्लास्ट टी ब्लास्ट एन करना है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? आपके पास तो कौन सा सीक्वेंस है? न्यूक्लियोटाइड। हाँ, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, पर वो कौन से टाइप का, डीएनए है, सॉरी डीएनए है या आरएनए है, ये पता है क्या आपको? नो सर। No, sir. नहीं, इसीलिए इसको हम रॉ बोल रहे हैं ना, रॉ सीक्वेंस है, क्योंकि यूजर ने उठा के दे दिया आपको, आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। तो सबसे पहले ये पता करने पड़ेगा ये डीएनए है या RNA है. आरएनए है। उसके बाद क्या पता करना पड़ेगा, ये जीन है या mRNA. कि ये जीनोम का कोई टुकड़ा है ना, जो कुछ भी कोड नहीं करता, यानी समझ रहे क्या? हाँ या ना? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने किया Yes. इसलिए बहुत आसानी से हो जाता है। आप करने जाएंगे ना तो वो घोड़ा नाल ही नहीं पहनने देता, तो भाग जाता है घोड़ा, आपका घोड़ा दौड़ता ही नहीं। तो इसलिए ये चीजें सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रॉ है, ये रॉ बाय इन्फॉर्मेटिक्स है, ये आना चाहिए आपको। ये है स्ट्रेटेजी बाय इन्फॉर्मेटिक्स, ये पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई भी सीक्वेंस इतना आसान नहीं है जितना वो दिखता है एनालिसिस करने के लिए। अगर मैं आपको ये सीक्वेंस दे दूं और बोलूं कि इसका 100% मुझे प्रोटीन ढूंढ के दिखाओ, यानी आपका अल्टीमेट टारगेट कौन है, इसका प्रोटीन सीक्वेंस तक पहुंचना है, ठीक है। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है बताइए? मेरे पास एक डीएनए, पहले चेक करेंगे कि वो डीएनए है या आरएनए है। हाँ, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताइए? बिल्कुल सही है, ये सीक्वेंस मेरे पास कॉपीड है, कहाँ जाऊं? सर हम न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करेंगे। वेरी गुड, यस, सही बोले एकदम, हम न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करेंगे उसका। सबसे पहले तो हमको पता रहना चाहिए कि वो है कौन, है ना, इसलिए हम उसका न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करेंगे, बिल्कुल बराबर है। अब क्या करूं, ऑर्गेनिज्म लूं या नहीं लूं? ऑर्गेनिज्म हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? No, sir. नहीं, हमको किसी ने ऑर्गेनिज्म थोड़ी बताया कि इस ऑर्गेनिज्म का वो सीक्वेंस है, रॉ सीक्वेंस है। हाईली लूं या समवॉट लूं? Somewhat. सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सर्च समवॉट, क्यों? मींस सिमिलर। अगर सिमिलर मिला तो हम हाईली की तरफ जा सकते। तो हाईली लिया तो हाईली लेंगे ना, कोई ऑर्गेनिज्म तो है नहीं यहाँ पे। तो सर हाईली भी ले सकते हैं, हाईली ही मतलब लेना, एज इट इज हाँ हाईली ही लेना कंपेयर करने पड़ेगा, के लिए। हाईली ही लेना पड़ेगा। हमको समवॉट लेके क्या करना है, क्योंकि हमको तो पूरा सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन चाहिए, समझा कि नहीं समझा? यस सर। हाँ, हमको आधा सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन लेके हम आगे थोड़ी जाने वाले हैं,
हमको तो उसका पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए हाईली ही लेंगे। ठीक है, अब क्या करूं, ब्लास्ट कर दूं? सर शो रिजल्ट इन न्यू विंडो एंड ब्लास्ट। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 100 नहीं चाहिए हमको, 10 ले लेते हैं। ब्लास्ट, आपको ही बतानी है पूरी स्ट्रेटेजी, मैं कुछ नहीं करूंगा। किससे मैच हुआ? हेलिकोबैक्टीरियम क्लोरम से मैच हुआ, राइट? 100% मैच है। अब क्या करूं? आप बताइए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जीन बैंक में जाके क्या करेंगे बताइए, मुझे पहले बताएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। आपका पहला स्ट्रेटेजी तो सेटिस्फाई हो गया ना, आपको नाम पता चल गया ना, कौन सा जीन है? NIFL, NIFL2, NIFH, NID, जो भी नाम है पूरा जीन का नाम है, कौन से ऑर्गेनिज्म का है? हेलिकोबैक्टीरियम क्लोरम। क्लोरम। कौन है ये, पता है क्या आपको? नहीं पता ना, तो सबसे पहले इसको उठा के क्या करेंगे, कहाँ लेके जाओ इसको? सर एनसीबीआई के टैक्सोनॉमी सर्च करेंगे। वेरी गुड, NCBI के टैक्सोनॉमी में सर्च करेंगे। कौन है पहले पता तो कर लें, क्या है बताओ, कौन है ये? बैक्टीरिया। सर बैक्टीरिया। बैक्टीरियम बैक्टीरिया। Bacteria. और जेनेटिक कोड कौन सा फॉलो कर रहा है? ट्रांसलेशन टेबल 11। टेबल 11। हाँ, ट्रांसलेशन टेबल 11। तो फिर ये जो सीक्वेंस हमने जो ब्लास्ट किया है अभी, ये कौन सा जेनेटिक कोड फॉलो कर रहा होगा? कौन सा? Translation table 11. हाँ, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन है क्या? नो सर। नहीं. नहीं है, सारे एक ही है। तो डेफिनेटली ये जो भी सीक्वेंस है, क्योंकि ये जीन है, हमने अभी यहाँ कंफर्म किया ना, क्या लिखा है देखो, जीन है, और ये किसका है? बैक्टीरिया का। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली टी ब्लास्ट एक्स में टी ब्लास्ट 10 में लेके जा सकता हूँ या नहीं? बताइए, नहीं। टी ब्लास्ट एक्स में नहीं लेके जा सकते डायरेक्टली? लेके जा सकते हैं सर। टी ब्लास्ट एक्स में लेके जा सकते हैं, क्यों नहीं लेके जा सकते? लेके जा सकते ना, हमको समझ में आ गया। हमको क्या क्या पता चला अब इसके बारे में, वो सीक्वेंस के बारे में? क्या क्या पता चला इस सीक्वेंस के बारे में? Sir, it is a gene from bacteria and it follows ट्रांसलेशन टेबल 11। translation table 11. और क्योंकि वो बैक्टीरिया से है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि बैक्टीरिया का जीन भी कोड करता है, और कौन कोड करता है? mRNA। इसलिए हम इसको ले सकते हैं डायरेक्टली। कौन सा जेनेटिक कोड फॉलो करूं? 11। ये यस सर। Bacteria naturally. समझा आपको? अब ये हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, यस सर। ये हटाना यस पड़ेगा, सर। और हमको करना पड़ेगा लास्ट। समझा आपको सबको? Yes sir. ये पहले वाले का रिजल्ट आ गया है, नियंदरथैलिस के साथ जो कंपेयर किया था उसका रिजल्ट देख लेते हैं। क्या लिख के आए? नो नो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट Similarity Significant found. results found. ठीक है, ओके।
तो इसको देख लेते हैं, उसके साथ तो रिजल्ट उसके नहीं आए। एक मिनट, इसका रिजल्ट आने देते हैं, ये देख लेते हैं। ये थोड़ा समय लेता है और समय लेने के कारण थोड़ा सा वी हैव टू वेट, कभी कभी रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है, इसमें विल वेट एंड वॉच। चलो अभी मैं आपके कुछ टेस्ट लेता हूँ छोटी छोटी, ठीक है, आप उसके आंसर्स दो, ठीक है। अगर मेरे पास में कोई ऐसा सीक्वेंस है जो रॉ है कुछ इस तरह, जो भी आपके सामने है, और वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, ये वाला, इसका मुझे, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मुझे प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए, तो मैं कौन सा ब्लास्ट इस्तेमाल करूं? ये एक सीक्वेंस है जिसका मुझे प्रोटीन, सर ब्लास्ट पी, ब्लास्ट पी, कौन सा? लास्ट पी। ब्लास्ट ब्लास्ट पी, पी। पी, यस यस सर। सर। कैसे? मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा मुझे इसका प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए ब्लास्ट थ्रू, तो आप सर ब्लास्ट एक्स यूज करेंगे, प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए होगा तो, Sir, अगर न्यूक्लियोटाइड से। कैसे बताओ? Sir, because BlastX codes for ProteinX database using translated nucleotide query. अच्छा, अगर मुझे वो इस्तेमाल नहीं करना है तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कोई अदर सॉफ्टवेयर? सर टी ब्लास्ट एन। टी ब्लास्ट एन, टी ब्लास्ट एन कैसे यूज कर पाएंगे आप? क्योंकि वहां क्वेरी क्या डालते हैं? प्रोटीन क्वेरी। नो सर, नो आप सर। नहीं डाल सकते ना, फिर ब्लास्ट एक्स ले सकते हैं क्या? ब्लास्ट एक्स सर ले सकते हैं। बताओ ना। सर टी ब्लास्ट Yes, एक्स नहीं sir. ले सकते। ब्लास्ट एक्स भी ले सकते हैं ना? ब्लास्ट एक्स ही ले सकते हैं, समझा क्या? बट सर टी ब्लास्ट एक्स में न्यूक्लियोटाइड क्वेरी से ही हम लोग हाँ हाँ, वहां पे भी ले सकते हैं, ठीक है, पर वो जो सर्च होता है ना वो ट्रांसलेशन बेस है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बेस है, समझा क्या? एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन से जो आउटपुट आएगा उसका प्रोटीन दिखाता है वो, इसलिए वो 100% कंफर्म नहीं रह सकता, इसलिए आपको कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? BlastX. ब्लास्ट एक्स। ये चीजें सीख लो और ये समझ लो, ये दिमाग में रखना है अपने को, अब तुमको भूलना नहीं है इस चीजों को, ठीक है, क्योंकि अभी अगर अच्छा बायोलॉजिस्ट बनना है फ्यूचर में, सी इंडियन बायोलॉजिस्ट बन के कोई फायदा नहीं है, आप जब तक फॉरेनर से कॉम्पीट नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं रहता इस रिसर्च करने में, क्योंकि वो हमारे से 50 साल आगे है हर चीज में, और अभी भी हमको ब्लास्ट नहीं समझता है ना, अभी भी हमको एनालिसिस नहीं समझती है, वो कहीं के कहीं चले गए, वो बहुत आगे चले गए हमारे से, तो इसलिए हमको पहले ही सीख के आगे जाना है बहुत फास्ट, ठीक है। तो अभी ये सब पॉइंट समझना, चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, आंसर था, क्या था आंसर? ब्लास्ट एक्स। BlastX. लास्ट एक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, मेरे पास एक जीन है जो यूकैरियोटिक है, क्या है? Eukaryotic. यूकैरियोटिक जीन है, मुझे उसका प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए, क्या बोला मैंने? मेरे Protein प्रोटीन sequence. सीक्वेंस। मेरे पास एक जीन है पर वो यूकैरियोटिक का है, और मुझे उसका प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए थ्रू ब्लास्ट, कैसे ढूंढेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सी मेरे पास जीन है किसका, ये याद रखो, ये इतना आसान नहीं है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा,
बताओ, कुछ आइडिया? आप लोग होशियार हो, बहुत फटाफट आंसर देते हो वैसे। ये देखिए, कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है। फिर भी वरी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी समझा है उसमें से अल्टीमेटली प्रोटीन ही बाहर आता है, ठीक है। और प्रोटीन से उसकी रीडिंग फ्रेम ही बाहर आ जाती है, जो बहुत कुछ इससे मैच करता है, टी ब्लास्ट एक्स से, है ना। टी ब्लास्ट एक्स जैसा ही टी ब्लास्ट एक्स है। तो अगर इससे रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था अभी का? कोई बताएगा मुझे फिर से क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन क्या था? एक यूकेरियोटिक जीन का सीक्वेंस है, हमें उसका प्रोटीन निकालना है थ्रू ब्लास्ट। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी अपनी? पहले एमआरएनए ढूंढेंगे। यस, बराबर है, सर करेक्ट। हमारे डेटाबेस में जीन जीन में जा करना, ठीक है, चलो ट्राई करते। ब्लास्ट एक्स करके ट्रांसलेट में। नहीं 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 नहीं, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन। पहली बात आपने बराबर बोला कि एमआरएनए ढूंढेंगे। आप कहां से कहां शिफ्ट करेंगे पहले खुद को? जीन टू एमआरएनए। यस। अब आप मुझे बताओ एमआरएनए कैसे ढूंढेंगे यूकैरियोटिक जीन का? कैसे ढूंढना जा सकता है? कौन से प्लॉयज है हमारे पास में, कौन सी टेक्निक अवेलेबल है? ये यूज कर सकते हैं क्या? कि ये यूज करें? न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट सर, हमें न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, फिर प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करें? न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में क्या आप कर सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड ही मिल सकता है तो बराबर स्ट्रेटेजी। आगे बताओ। चलो, ऑर्गेनिज्म का नाम ढूंढेंगे। ऑर्गेनिज्म का नाम ढूंढेंगे, बराबर है। सबसे पहले तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म का है ना। यस हाँ। सर। मैंने यूकैरियोट बोला, तो सबसे पहले आपको वो जीन सीक्वेंस चाहिए रहेगा, बराबर है। चलो, मैं वो एक जीन सीक्वेंस देता हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सीख रहे हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि मैं हर बार आपके साथ में थोड़ी रहूंगा। जब आप अकेले घर पे रहोगे या आपके लेबोरेटरी में रहोगे, सेम क्वेश्चन आपके सामने पड़ा रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ कि एक बॉस टॉरस का सीक्वेंस मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है जीन, ठीक है। समझ रहे आपको? ये मैंने यहां से अब निकाल लिया है। जीन, ये आपका जीन आ गया, यूकैरियोटिक जीन है ना। किसका है? ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जीन है। इससे मुझे चाहिए क्या? क्या निकालना है? एमआरएनए। प्रोटीन अल्टीमेटली, हाँ। एमआरएनए। हाँ, उससे एमआरएन निकालना है। अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या है पहले बताओ, क्योंकि आपको कोई रेडीमेड तो देने वाला नहीं है, आपको तो खुद को काम करना पड़ेगा। तो वापस एनसीबीआई पे जाएंगे। एनसीबीआई में जाओ, ठीक है। आ गया मैं एनसीबीआई में, बोलिए आगे। आ गया, कहाँ जाऊँ? ऑर्गेनिज्म का नाम डालेंगे एंड ऑर्गेनिज्म का नाम तो नहीं पता ना आपको, ये तो मैंने अभी बताया इसलिए आपको पता है।
आपको कहाँ पता है? करेंगे हम्म, ब्लास्ट एन हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे? ब्लास्ट 10। ब्लास्ट 10। चलो ब्लास्ट 10 का सब समझ रहे हैं ना स्ट्रेटेजी? अगर आपके पास जीन है तो सबसे पहले कहाँ जाना? ब्लास्ट 10। ब्लास्ट 10 से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा सीक्वेंस है, क्या है। बहुत जनरल है ना ये। कोई ऑर्गेनिज्म पुट करूँ क्या? नहीं, नो अभी सर, नो सर इसमें से कौन सा? हाईली हाईली सिमिलर। हाईली सिमिलर हाईली सिमिलर, बराबर है। लेट्स सी विथ whom it shows match. जिनका नाम पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। क्या पता चला? कौन है? सर ड्रोसोफिला डोर्सोफिला मिलेनियम। पर ड्रोसोफिला पर जीन का नाम तो नहीं पता चला। ड्रोसोफिला जीन का नाम तो पता नहीं चला। सर वी हैव टू क्लिक और इट। उसको क्रोमोसोम एनसीबीएन क्लिक करो, ठीक है। फिर भी पता नहीं चला। चला क्या पता? ऑर्गेनिज्म को सर्च करेंगे एनसीबीएन जीन बैंक में मिल सकता है। अरे आपको कौन सा क्रोमोसोम है ये पता सर चल टेक्सोनॉमी में डोर्सोफिला का नाम सर्च करेंगे आप। उससे सर्च क्या होगा? करेंगे अरे वो तो पता चल गया ना। हमको एमआरएनए सीक्वेंस चाहिए इसका। जीन का नाम पहले पता करना पड़ेगा। नहीं समझ रहा? आपके पास जीन है, ये सी रिसर्च यहीं से शुरू होगी। अगला वाला आपको सीक्वेंस देके चला जाएगा घर। पूरा जितना भी एनालिसिस करना है आपको करना है। आपके पास में सीक्वेंस है, आपको पहले उसके एमआरएनए तक पहुंचना है। क्या स्ट्रेटेजी है ये आपको समझनी है। क्या स्ट्रेटेजी हमने डिजाइन की? सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट किया। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करने के बाद हमको ये पोजीशन पता चली, दिख रही है कि ये पोजीशन? यस सर। पर इसका नाम पता चला क्या इस जीन का? नो सर नहीं पता चला। अरे हमारी स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई। हमारी ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई, हाँ या ना? यहाँ पे ना यस और एक सर। है, देखो ये दिख रहा है। यस सर, जीनोमिक प्लस ट्रांसक्रिप्ट डेटाबेस। हाँ, पर ये स्पेसिफिक टू होम है, समझ रहे? इसको ले नहीं सकते हम क्योंकि ह्यूमन और माउस का है, ठीक है, इसलिए नहीं ले सकते। इसको वापस ही आना पड़ेगा। फिर यहाँ आएंगे। और कुछ दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? ये कौन है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कौन है ये? अरे कौन है? मैंने बताया। एमआरएनए हाँ, एमआरएनए है वो। एमआरएनए एमआरएनए है। चलो इसको ट्राई करके देखते पहले। समझा क्या आपको पॉइंट? यस सर हाँ, उसमें डेटाबेस की फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे पास। हम उसका इस्तेमाल करके देखेंगे पहले कि हमको एमआरएनए मिलता है क्या। जीन सीक्वेंस से हम शिफ्ट होना चाहते हैं एमआरएनए सीक्वेंस पे। क्या मिला? मिला क्या कुछ? अरे मिला क्या? सर एमआरएनए सीडीएनए सीडीएनए मिल गया। इसके नीचे लिखा है ना, देखो ना, क्लिक करो। क्या मिला आपको? mRNA सीक्वेंस। एमआरएनए सीक्वेंस मिल गया ना? कंफर्म हो क्या? हाँ सर। कैसे? यस सर सर कैसे? वो ऊपर लिखा है। ऊपर लिखा है ना? हाँ। ये एमआरएनए सीक्वेंस है। कहां से आपके सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस है ना? ये इतना बड़ा सीक्वेंस है, राइट? हाँ या ना?
ये आपका इतना बड़ा सीक्वेंस है ना, यस सर। इसमें कौन से पार्ट से आपका एमआरएनए शुरू हुआ बता सकते हैं? मैंने पढ़ाया था कल, कौन से पार्ट से एमआरएनए शुरू हुआ कोड होना? ये किसका सीक्वेंस है बताइए, किसका सीक्वेंस है? जीन का है, राइट? आपने जीन दिया ना इनपुट में, यस सर। 7523 न्यूक्लियोटाइड का आपने जीन इनपुट में दिया है एनालिसिस करने के लिए। ये जो यहाँ पे है ना, ये वाला जो ड्रासोफिला मेलानोगास्टर का है, इसमें से आपका एमआरएनए कोड होने का जो रीजन है वो कहां से शुरू हुआ? 5384 5384 समझे क्या? और एंड कहां हुआ? 6327 पर आप थोड़ा ध्यान से देखो, एमआरएनए उसका उल्टा है। एमआरएनए की शुरुआत कहां से हो रही है? जो नीचे है, समझ रहे क्या? यस सर, मतलब वो -1 से उसका सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है। यानी ये प्लस स्ट्रैंड है, समझ रहे हैं? ये प्लस स्ट्रैंड है और ये उसका माइनस स्ट्रैंड है, यानी ये उसका 5 प्राइम एंड है। समझा क्या आपको? यस सर। समझ रहे? और ये उसका 3 प्राइम एंड है, यानी उल्टे डायरेक्शन से जीन सिंथेसिस हो रही है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यस सर। आपका जीनोम लेफ्ट टू राइट दौड़ रहा है, समझ रहे हैं? और आपका प्रोटीन सिंथेसिस राइट टू लेफ्ट हो रहा है, यानी एमआरएनए सिंथेसिस। समझ रहे हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। पॉइंट क्लियर हो गया? तो कौन सा रीजन है जो आपके जीन के अंदर एमआरएनए है, ये मुझे बताइए। कौन सा रीजन है? कौन सा रीजन है? रीजन बताओ ना, अभी तो ये बताया ना मैंने, कौन सा है? कहां से कहां तक? 53842632 राइट। समझा क्या आपको? यस सर। यानी आपके इतने बड़े सीक्वेंस में से सिर्फ इतना ही पार्ट काम का है, समझा? जिसका लेंथ सिर्फ 12% है टोटल जीन में से। समझ रहे हैं? यानी आपके 7523 न्यूक्लियोटाइड के जीन में से सिर्फ 12% ही है जो एक्चुअल cDNA दे रहा है। समझ रहे हैं? यानी एमआरएनए दे रहा है। पॉइंट क्लियर? समझ रहे हैं सबको? एक जन ऑन रखो माइक अपना। अब हमको करना क्या है, हमको हमारे इस जीन में से वो रीजन निकालना है, टेक आउट हमको बाहर निकालना है। तो कैसे करेंगे वो चीज? कैसे करेंगे बताओ? या हमको एमआरएनए चाहिए था, वो कैसे करेंगे? ये है वो एमआरएनए एक्चुअली। समझ रहे? 943 न्यूक्लियोटाइड्स का। इसको मैं क्लिक करता हूं तो आपका वो ड्रासोफिला मेलानोगास्टर का अल्डोलेज एंजाइम आइसोजाइम निकल गया, दिख रहा है यहाँ पे। और उसका फास्टा फॉर्मेट क्लिक करेंगे तो आएगा आपका एमआरएनए। मिल गया आपको एमआरएनए। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? आपके पास ये जीन है, इस जीन का एमआरएनए कौन है, कैसे बताएंगे?
ये है ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी दिस एंड पुट इट हियर। अगला काम क्या क्या है, अगला काम क्या करना है इनको, एमआरएनए से कहां तक पहुंचना है, प्रोटीन Protein तक। sequence. प्रोटीन तक। सीक्वेंस तक। हम कहां तक पहुंच गए, mRNA तक। सीक्वेंस। अगला अगला कंसेप्ट क्या है, क्या करेंगे आप, एमआरएनए के साथ क्या ब्लास्ट करेंगे, एक्स। ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ। Copy the will paste the sequence. पेस्ट कर देंगे, कहाँ पेस्ट करूं, ब्लास्ट एक्स में, Last. हाँ फिर पर उसके पहले एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी ना। सर पहले Sir, first कौन of सा all, we have to जेनेटिक find the कोड, genomic location. हाँ कौन हाँ सा जेनेटिक कोड फाइंड आउट कर बराबर है, फॉलो कर रहा है। बराबर, जीनोमिक लोकेशन और जेनेटिक कोड, कोड। ये ढूंढने पड़ेंगे ना। कैसे ढूंढेंगे बताओ, पहले क्या पता रहना चाहिए, सबसे पहले, ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, ऑर्गेनिज्म ने, फिर फिर सर्च फॉर जेनोमिक जीन। जीनोमिक जीनोमिक लोकेशन, लोकेशन। फिर Transcription table. ट्रांसलेशन टेबल। Translation table. ट्रांसलेशन टेबल, और उसके बाद हम जाएंगे उधर। तो यहाँ कैसे करूं, फिर यहाँ तो हमको पता है ना ऑलरेडी, कौन है हमारा ऑर्गेनिज्म, ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, ठीक है। और हमको कौन सा जीन ढूंढना है, अल्डोलेज Aldolase isozyme. आइसोसाइम्स। हाँ अल्डोलेज आइसोजाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, अब ऑर्गेनिज्म तो पता चल गया, पहले NCBI पे जाएंगे एंड देन वहाँ पे हाँ बराबर, एनसीबी अभी जाता हूँ, यहाँ जाके क्या करेंगे, नेम और नेम डालेंगे एंड देन डाटाबेस में हम्म निकाल दिया, और क्या, और क्या करना है, ऑल डेटाबेसेस में जीन में जाना पड़ेगा। जीन में जाऊँ, चलो ठीक है, जीन में जाता हूँ, उससे क्या पता चलेगा, जीन में ऑर्गेनिज्म तो नहीं ढूंढ सकते ना। सर एमआरएनए पता चलेगा। Sir, first of all, we have to find the taxonomy of Drosophila. वो तो बाद की बात है ना, पहले तो हमको जीनोमिक लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, जीनोमिक लोकेशन। किसकी ढूंढ रहे हैं, सर जीनोम डेटाबेस में अल्डोलेज हाँ 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 अल्डोलेज, अल्डोलेज एंजाइम भी वहाँ पे। हाँ हाँ, समझे क्या, यस सर। ये सब दिमाग में रखो, भूल मत जाओ, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, आप पूरे ट्विस्ट हो जाते हो, ठीक है, बराबर है ना। हाँ सर्च करते हैं, मिल गया, पोजीशन मिल रही है क्या, नहीं मिली, क्लिक करेंगे, मिल रही है कहीं, यस सर। Yes, sir. सर 3 ये है ना 97 97A6, 97A6. 97A6 है ना, और एक 390 भी दिया हुआ है उसने, है ना, दोनों पे है वो, देखो सेमीकोलन है, Yes, sir. ठीक है। तो पहले अब ये देखना पड़ेगा, आप कहाँ जाओ, ट्रांसक्रिप्शन टेबल, ट्रांसक्रिप्ट टेबल। Sir, organism पे click करेंगे. ओके बराबर, पर अभी क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम नंबर हमको पता नहीं चला, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा,
यहाँ से कैसे बताऊंगा कि मैं वो ये वाला ही है करके, यही क्रोमोसोम करेक्ट है? ये क्रोमोसोम कौन सी जगह पे है, कैसे पता चलेगा? सर ये नीचे जो टेबल है सर उसमें 3R 3R किया है है। ना। हम्म, यहाँ जाएंगे, सर क्रोमोसोम 3R। क्रोमोसोम 3R। कैसे पता चलेगा क्रोमोसोम 3R कहाँ का है? क्रोमोसोम 3R कहाँ पे, कैसे पता चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया का तो नहीं है ना? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ही है। क्रोमोसोम कभी भी याद रखो, क्रोमोसोम लिखा इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियस। हाँ। हाँ, अब आप बहुत होशियार हो गए हो, यानी आप अभी ना अच्छे साइंटिस्ट को भी बीट कर सकते हो। वेरी गुड। ट्रांसलेशन टेबल कौन सा है? 1। 1। सॉल्व हो गया। जी, ऑर्गेनिज्म पता चल गया, जीनोमिक लोकेशन हो गया, ये भी पता चल गया। ट्रांसलेशन टेबल 1। 1। तो अब क्या करूं, ये सीक्वेंस लेना चाहिए, यहां से कॉपी कर लूं? यस सर। कॉपी। कौन सा ब्लास्ट? ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स। ओके, पेस्ट कर दूं यहाँ पे, ठीक है। आगे जेनेटिक कोड सिलेक्ट करें। कौन सा? सर 1। स्टैंडर्ड ही रहेगा। स्टैंडर्ड ही रहेगा। और आगे जाऊं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म नेम ड्रोसोफिला। आगे क्लिक कर दूं? यस सर। शो रिजल्ट्स। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रहने वाले आपको एग्जाम में, हाँ, अपने यहाँ मजा आने वाला है। देखते हैं। और ये अभी नहीं पूछूंगा, ये 15-20 दिन बाद पूछूंगा। तब तक सब भूल जाते हैं। आ गया? यस सर। यस सर। ये भी है, ये भी सेम उसके नाम है, सिनोनिम्स है, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। क्वेरी कवरेज कितना है? 9%। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये तो इतना सही आया। अब कैसे करें? हम्म, हमारा सीक्वेंस तो बहुत छोटा सा हो गया, इतने बड़े जीन का इतना छोटा प्रोटीन। सर आपने वहाँ ब्लास्ट पे क्लिक करने से पहले आपने सेट किया था। क्या? नहीं, वो मैक्सिमम आया रहता तो टॉप में ही आया रहता ना, है ना? अब क्या करें? सर क्वेरी रेंज सेट नहीं की। क्वेरी रेंज, क्वेरी रेंज की जरूरत ही नहीं, वो तो पूरा ही एमआरएनए है ना, पूरा ही एमआरएनए सीक्वेंस है वो, ये पूरा ही एमआरएनए सीक्वेंस है। पर हमारा आउटपुट तो बहुत छोटा सा आया, इतना छोटा तो प्रोटीन नहीं रह सकता। पर ये दिया तो है उसने, फ्रुक्टोज बिस्फॉस्फेटल्डोलेज। क्या करेंगे बताओ? जैसा चाहिए था वैसा तो आया ही नहीं बिल्कुल, है ना मजेदार? वो दिखता उतना आसान नहीं है कोई भी चीज, इसलिए जब हम रियली शुरुआत कर रहे हैं ना यहाँ से, ये देखो यहाँ से जीन से, जीन से कहाँ तक पहुंचे? एमआरएनए तक। mRNA। और ये एमआरएनए से पहुंचे इतने छोटे प्रोटीन तक, ठीक है। पर इसने क्या बोला, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है आपका क्वेरी यहाँ से यहाँ तक हुआ, पर इसके
365 अमीनो एसिड से लेकर 394 अमीनो एसिड तक ही मैच मिला, पर इसका ये मतलब तो जरूर है कि आप सही जा रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो ये सारा मैच हो रहा है प्रॉपरली, एक्सेप्ट दिस स्टार, यानी स्टार एंड स्टॉप कोडॉन, यानी ये आप रीजन बराबर जा रहे हो। तो अब आप काम करिए, इसको क्लिक करिए। ये कौन है? ये किसका सीक्वेंस है बताइए, बता सकते हैं किसका सीक्वेंस है ये? mRNA। नहीं, प्रोटीन। प्रोटीन सर ये का। प्रोटीन का हाँ सीक्वेंस है। प्रोटीन, का सीक्वेंस। आपने प्रोटीन से कंपेयर किया ना, ब्लास्ट एक्स किया। हाँ यस सर। इसको क्लिक करो, प्रोटीन है। आपको हर चीज पता रहनी चाहिए बिना क्लिक किए भी। ये वो प्रोटीन है जो उससे मैच कर रहा है, ठीक है? समझे आपको? आइडियली आपके, सर। हाँ आइडियली आपके इसने ये प्रोटीन देना चाहिए था, बराबर, पर उसने नहीं दिया। तो अब मैं उल्टा जाता हूं, प्रोटीन से एमआरएनए बनाता हूं। बना सकता हूं क्या? यस यस सर। सर। बताओ कैसे, कौन सा इस्तेमाल करूं? सर टी ब्लास्ट सर है। टी ब्लास्ट 10। टी ब्लास्ट। हमारे पास ये अल्डोलेस का प्रोटीन है, सॉरी ड्रासोफिला मेलानस का ये प्रोटीन है जो हमारे जीन के सीक्वेंस से मैच करा है, पर अच्छे से रिजल्ट्स नहीं मिला। इसलिए हम वापस जा रहे हैं कि ये ढूंढने के लिए कि कौन सा एमआरएनए है जो हमारा ये प्रोटीन देता है, ठीक है? आगे क्या करूं? ब्लास्ट कर दूं? सर ऑर्गेनिज्म फिर से। कर दे ब्लास्ट? यस सर। ओके चलो, मिल गया cDNA। और कौन मिला? और कौन मिला? एमआरएनए मिल गया, है ना? तो ये एमआरएनए हमको मिल गया। ऐसे बहुत सारे एमआरएनए मिले, देखो यहाँ पे के वेरिएंट, आई वेरिएंट, डी वेरिएंट, समथिंग लाइक दैट। किसी का तो भी नॉइज है, थोड़ा कम कर दो। तो ये अलग अलग एमआरएनए आपको मिले, cDNA भी मिल गया, ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन cDNA एंड एमआरएनए? कोई बता सकता है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है ना? और यहाँ देखो सीडीएस भी आया है, कंप्लीट सीडीएस कोडिंग सीक्वेंस, कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस। अब कौन सा लूं, ये वाला लूं या ये? बहुत सारे वेरिएंट दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। पॉइंट समझ रहे हैं? चलो मैं इसको लेता हूं, फर्स्ट वाले को, अल्डोलेस 1 को, ठीक है? इसको क्लिक करता हूं, यहां से ये सीक्वेंस लेता हूं, मिल गया। इसका फास्टा ले लेते हैं, ये है वो प्रोटीन एमआरएनए सीक्वेंस। अब मेरे पास में वो एमआरएनए है जिसके पास पोटेंशियल है पूरा प्रोटीन देने का, बराबर है? तो मैं इसको यहां कॉपी कर लेता हूं, फुल पोटेंशियल वाला है, ठीक है? ये देखो, हमने इस जीन से ये एमआरएनए निकाला था, है ना? याद है सबको? यस सर। और अब हमने ये एमआरएनए निकाला इसके प्रोटीन से, समझे आपको? यस सर। एक एमआरएनए हमने जीन से निकाला मैच करके, और एक एमआरएनए जो है वो
प्रोटीन के मैच से ढूंढ के निकाला हमने। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितने मैच होते हैं। तो कौन सा ब्लास्ट करूंगा? टी ब्लास्ट एक्स। नहीं, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में कौन सा? ब्लास्ट एन। ब्लास्ट एन यानी न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, ये वाला यूज करेंगे ना। यस सर। एक को अलाइन दूसरे टू और एक, मोर सीक्वेंस। हमको डेटाबेस इस्तेमाल करना है क्या? नो। नहीं, हमको तो एक उन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करना है ना, इसलिए अब इनको उठाएंगे और उसको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूं मैं, ताकि अपने को आसानी से समझ में आ जाए। जीन टू mRNA है ना, ये जीन टू mRNA है और ये प्रोटीन टू mRNA। कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। हाईली सिमिलर, शो रिजल्ट इन न्यू विंडो। देखो 100% मैच है, सिर्फ यहाँ छोटा सा चेंज है, ये 50वें न्यूक्लियोटाइड के रेंज में, 50 के 60 के बीच में यहाँ पे चेंज है, अदरवाइज ये प्रॉपरली अरेंज्ड है एक दूसरे के साथ में। पर जो मैच मिला वो बहुत ही छोटा है। पूरा पूरा सीक्वेंस अलाइन हुआ है क्या? नहीं मिला, पूरा 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 सीक्वेंस अलाइन नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 18% क्वेरी कवरेज है। कितना परसेंट? 18%। 18। अब मुझे ये बताइए ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ, बता सकता है कोई? आपने जब जीन से mRNA ढूंढा तो आपको एक mRNA मिला, आपने प्रोटीन से एक mRNA ढूंढा वो अलग मिल गया। अब गड़बड़ कहाँ है? कौन सा गलत हो सकता है, क्या गड़बड़ हुई? क्योंकि हमको प्रोटीन बहुत छोटा मिला, हमने करेक्ट कर नहीं पाए एनालिसिस को, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब और एक चीज एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूं, पहले ये जीन टू mRNA है ना, तो यहाँ पूरा एक पूरा जीन डाल देता हूं पहले नीचे वाले में, जो हमने यहाँ कॉपी किया हुआ है। मैं ये देखना चाहूंगा कि ये सीक्वेंस इसके अंदर है या नहीं है। सॉरी, पूरा जीन वहां उठा के डालते हैं और एक जीन में उसकी मैच होनी चाहिए फिर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है समझ रहे हैं? जो mRNA हमको जीन से मिला उसका यहाँ मैच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 100% मिला हमको, दिख रहा है। और क्वेरी कवरेज देखो, पूरा 100 में से 100 मिला है हमको, दिख रहा है। यस सर। यानी आपके जीन के अंदर 6327 न्यूक्लियोटाइड से 943 न्यूक्लियोटाइड तक ये mRNA कोड करता है या प्रेजेंट है ना, है ना। यानी वो रीजन अवेलेबल है, यानी आपका जीन के अंदर का जो कोडिंग रीजन है वो है 943 से लेके 6327 तक, एज पर दिस इंफॉर्मेशन। अब हम और एक एडिटिंग करेंगे जहां पे, हाँ
बोलो। सर वो 5000 रहेगा ना, 900 नहीं ना? नहीं, ये ना 6327। सर 6000 है और नीचे ये 5384 हाँ, रहेगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, 5384। और तभी भी हमने शायद यही रीजन ढूंढा था, याद है, जब हमने यस सर। प्रोटीन अलाइनिंग किया था, तो 5384 से 6327 तक वो कोड कर रहा है। हाँ बराबर है, वो थोड़ा सा मैं बोलने में गलत हो गया, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला। अब जो बचा हुआ है एक, ये वाला जो नीचे है, जो हमने प्रोटीन से उठा के एमआरएनए तक लाया, इसको चेक करते कि ये सीक्वेंस अवेलेबल है या नहीं है। तो पहले इसका रीजन एक जन नोट डाउन कर लो, क्या है, 6327 5384। अब ये जीन है नीचे में, मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे भी 100% क्वेरी कवरेज मिल रहा है मुझे, पर रीजन कौन सा रीजन मिला? 3549 टू 4368। हाँ, पर इसमें देखो और एक रीजन है, दिख रहा है ये नीचे में, यस सर। और एक रीजन कौन सा है, ये लिख के रखिए, 6156 6156 6388। 6388। फिर और एक रीजन मिला 2379, लिख के रखो एक जन, और 2605। फिर और एक रीजन मिला 4455 और 4660। ठीक है, अब इसको ऐसे करो कि अरेंज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो जो भी आपने लिखे, यानी कम से लेके ज्यादा तक जाओ रेंज। आ गए? कौन से रीजन है बताएंगे? बता सकता है कोई कौन से रीजन थे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए उसको बराबर, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़े से 4 टुकड़े फॉर्म हुए उसके अंदर। सर पहला रीजन था 2376, सॉरी 2379। हाँ, से लेके टू टू 2379 से लेके 2605 2379 से 26 तक गया। 005 हाँ, तो ये है पहला एक्सॉन। कौन है ये? एक्सॉन। हाँ, क्योंकि आपने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जीन पुट किया, और हमारा मेन एम था कि उससे हमको प्रोटीन तक पहुंचना है। पर प्रोटीन तक पहुंचने के लिए हमने ये कंक्लूड किया यहाँ पे कि प्रोटीन तक पहुंचने के लिए हमको पहले उसका एमआरएनए ढूंढना पड़ेगा। तो एमआरएनए का जो रीजन है वो जी एक्सॉन होता है एक्चुअली। तो ये जो टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो, ये रेंज 1, फिर ये रेंज 2, ये रेंज 3 और ये रेंज 4, ये चारों के चारों कौन है? एक्सॉन। यानी इस एमआरएनए, इस जीन के अंदर में 4 एक्सॉन्स है जो आपको अल्टीमेटली एमआरएनए दे रहे हैं। और जो एमआरएनए आपके हाथ में अभी है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला जो एमआरएनए है ना, ये एमआरएनए आप ही के जीन ने बनाया, पर इसको बनाने के लिए उसने 4 रीजन्स का इस्तेमाल किया, और वो रीजन्स है ये वाले जो अभी हम देख रहे हैं। ये समझ रहे हैं सबको? पहला रीजन कौन सा था? 25 कुछ तो था, 23। 2379 हाँ, सेकंड 3549। हाँ 2379 3605, ये पहला रीजन है, राइट? तो ये हाँ आपका पहला एक्सॉन है। हाँ सर। सेकंड कौन सा है? 3549 से 4368।
ये 3549 से 49 से 436 है, ये 4368 सेकंड एक्सॉन है। ठीक ठीक है, है। वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि वो मैच के बेसिस पे होते हैं। थर्ड, ओके 4455 हाँ, और 46 से 4660। 4660 और यस लास्ट कोई बचा है? 6156 से 6388 कहाँ गया? सेकंड नंबर पे है, हाँ ये है ना, हाँ 61566388। सो हमने ये कंक्लूड किया कि आपके जीन के अंदर में 4 एक्सॉन्स है जो ये पर्टिकुलर एमआरएनए दे सकते, जो अभी हमने दिखाया, और उसके बेसिस पे आपका कौन सा प्रोटीन बनता है ये आप बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्योंकि हमने प्रोटीन से एमआरएनए बनाया, याद है ना, तो हमको प्रोटीन मिल गया था। समझ में आ गया ना सबको? ये जो सर इन सो चारों को मर्ज सर करके कंबाइंड प्रोटीन बन सकता है क्या फिर? यस यस यस, इन चारों को अगर हमने मर्ज कर दिया रीजन्स को, तो हमारा ये एमआरएनए बन जाएगा जो हमने अभी यहाँ निकाला हुआ है, ये वाला। समझा क्या आपको? पर वो तो जीन होगा ना सर। नहीं, ये तो एमआरएनए, जीन ये एमआरएनए इस जीन का, वो जो रीजन हाँ अभी आपको बताया ना, एक मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ करके, पर वो मुझे लगता है रिकॉर्ड नहीं होना, तो कॉपी कर दिए। ठीक है, ये आपका जीन है, इसको मैंने अभी सेव कर दिया है। ठीक है, अब मुझे इसको ओपन करना है, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, ओपन, डेस्कटॉप, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मुझे कट करना है वो सीक्वेंस, क्या करना चाहिए मुझे? इसको कट करना है, कोई बताएगा क्या करूं मैं? एडिट एडिट, राइट, एडिट में जाऊंगा। सबसे पहला रीजन कौन सा था? सर टू थ्री 2379। 2379 79 टू टू थ्री थ्री सेवन नाइन 2379, 2379 पे पहुंचते पहले अपन। 2379, 2378, 2379, ठीक है, यहां से शुरू हो गया। कहां तक जाना है? 2605 2605। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, और ये पहला वाला था ना, जी सर पहला था पहला है ना एमआरएनए। सेकंड कौन सा है? 3549 3549 ये आगे गया सर 3549 से 4368
अभी मैं इसको टुकड़ों में डालता हूँ पहले, फिर उसको जोड़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है 4455। से 4455 है ना, 4660। एक मिनट हाँ 44 4455। 4660। 660, राइट। यस सर। 661 है, ठीक है, इसको एक उड़ा दूंगा मैं यहाँ से। नेक्स्ट 6156। 6388। 88। एक उड़ा देंगे। हो गए, हो गए सारे। ओके, जी सर 4 ही थे। 4 ही थे। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और एक बार उसको वही रहने देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको फेयर कर देंगे हम। बन गया। तो ये हमारा mRNA है जो हमने जीन के सीक्वेंस से कॉपी करके बनाया। अब इसका इसका क्या करना पड़ेगा बताइए, इस सीक्वेंस को क्या करेंगे हम? कौन सा ब्लास्ट करेंगे? सर न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, उस पे भी 2 स्पेसिफिक वाला। चलो ठीक है, वो तो आ जाएगा, वो तो 101% है क्योंकि उसी से मैच किया था ना अपन ने। यस सर। अभी हमको ये देखना है कि ये प्रोटीन कौन सा बनाता है, क्योंकि हमने mRNA निकाल लिया ना, नहीं यस समझा? सर। सर अगर हम टी ब्लास्टिंग करें यहाँ तो? टी ब्लास्ट एन, हाँ टी ब्लास्ट एन क्या करेगा? टी सब ब्लास्ट ब्लास्ट एन, टेक्स्ट करेंगे। टी ब्लास्ट एन नहीं कर पाएंगे मैडम क्योंकि प्रोटीन है। तो ब्लास्ट एक्स करना पड़ेगा। ब्लास्ट एक्स करना पड़ेगा ओके क्योंकि ब्लास्ट एक्स न्यूक्लियोटाइड। हाँ, इसको कंट्रोल वी स्टैंडर्ड यूज करेंगे, ये तो सब पता है हमको, है ना। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का ही है ना ये। चलो ठीक है, ब्लास्ट। कौन सा प्रोटीन मिलने का एक्सपेक्टेशन है? अल्डोलेज आइसो। अल्डोलेज आइसोफॉर्म। अल्डोलिस। हाँ हाँ, लेट्स सी क्या आता है। तो वो सीक्वेंस देगा सर या डायरेक्ट प्रोटीन देगा सर? ये डायरेक्ट प्रोटीन देगा। देखो आ गया, दिखा? यस सर। हुर्रे, आ गया। समझा क्या आपका? पूरा परफेक्ट यस जीन आ सर। गया, देखो पूरा परफेक्ट। यानी आपने इस जीन से
आपने इस जीन से, ये वाला जीन है ना, इस जीन से उसका एग्जैक्ट एमआरएन निकाल लिया है। देखिए जो आपके नीचे में है ना, अभी यहाँ पे अपन ने उसको नोटपैड में डाल दिया था, ये एग्जैक्ट एमआरएनए आपने उसका डाउनलोड कर लिया अपने पूरा एनालिसिस करने के बाद में। ये पूरा एमआरएनए उसका, ये एमआरएनए का 252 नंबर का जो रीजन है, 252 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये क्या कोड करता है? AUG AUG, यूनिट। समझ में आ गया आपको, +3 स्ट्रैंड कोड कर रही है और यहाँ खत्म हो जाएगा। यानी 252 न्यूक्लियोटाइड से लेके 1052 न्यूक्लियोटाइड तक कौन है बताएंगे? CDS। कौन है? CDS यानी Coding एमआरएनए के अंदर, sequence. हाँ, कोडिंग सीक्वेंस। समझ में आ गया आपको सबको? मजेदार है ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स? किसी को डाउट है कुछ? सर इससे पहले जो वो छोटा वाला सीक्वेंस आया था प्रोटीन का, फिर वो क्यों आया था छोटा? हाँ, वहां कहीं ना कहीं मैच उसका नहीं मिला उसको, ठीक है, इसलिए हमने उसको रिवर्स जाके एनालिसिस किया। पर हमको ये तो पता चल गया था कि वहां प्रोटीन है, वो सीक्वेंस प्रोटीन फॉर्म कर सकता है, इसलिए हमने वो प्रोटीन को बैक बेस लेके ये एमआरएनए ढूंढ लिया था, याद है ना, प्रोटीन टू एमआरएनए। और फिर इसको रिवर्स लेके हमारे जीन में ढूंढा कि इसका सीक्वेंस और कहां मिलता है। नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो है। सर समझ तो गया, पर हर बार वो एप्लीकेबल रहेगा कि नहीं उसमें डाउट रहेगा सर। हाँ। तो उसमें हमेशा आपकी मदद लगेगी। तो व्हेन इफ वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट टू थिंक, तो सर उसके लिए कोई की होगी ना कि ये ऐसे, ये इस वक्त ये करना चाहिए। कोई की नहीं है, जितने भी प्रोग्राम आपने सीखे उन हाँ, सबको आड़ा टेढ़ा करके देखिए, जब तक आपको 100% ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। टाइम कंज्यूमिंग है ना सर, पर है ना। टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च है ना मैडम ये। इसी का तो पैसा मिलता है। मैं आपको बताता हूं, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स है जिनको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना पड़ता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का, ने उनके 350 से लेके 4000 5000 ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन रहता है उनका, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन करने के लिए मैं कॉस्ट करता हूँ 15,000 रुपीज, और मेरे लिए काम कितना मिनट का है मैडम मालूम है? सिर्फ 10 मिनट का। सर हाँ बोले। हैप्पी यू सर। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं मुझे, पर मैं वो डेटा उनको 20 दिन बाद देता हूँ। मैं उनको ये बताता हूँ कि हाँ, बहुत ये टाइम बात भी लगेगा। सही है। अगर मैं बोलूंगा हाँ अगले 2 दिन में देता हूँ तो मुझे पैसा नहीं देंगे। पर उसके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो पता रहनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा नहीं, था? अगर आप हमें कोई हाँ आप हाँ, मैं क्वेरी देने वाला हूँ ना आप लोगों को, मैं आपको क्वेरी देने वाला हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाने दीजिए, ये इसीलिए मैं आपको क्रॉस ले रहा हूँ, यानी रिवर्स रिवर्स इन्फॉर्मेटिक्स लेना बहुत जरूरी है। सीधा सीधा तो सबको समझ में आ जाता है, पर जब अभी ये जो क्वेश्चन आया तो इससे अब इतना आसान नहीं है समझा आपको, अरे बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको क्या लगा, अरे वाह जीन ले लिया मैंने, जीन से हम एमआरएनए डेटाबेस ढूंढ लेते हैं, वहां से हमको एमआरएनए मिल जाएगा, एमआरएनए से हम प्रोटीन ब्लास्ट कर लेते हैं, एमआरएनए टू प्रोटीन कर लेते हैं, तो वहां से वो मिल जाएगा। पर वो ऐसा नहीं मिला, फिर हमको प्रोटीन से वापस जाना पड़ा एमआरएनए की तरफ, और वो जो एमआरएनए मिला उसको अपने जीन में ढूंढा, फिर वो जीन के एमआरएनए को कन्वर्ट करके फिर से प्रोटीन तक पहुंचे। ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना पड़ा आपको, पर आसान है, नॉट दैट टफ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस फिर से हम करेंगे अच्छे से, और एक एग्जांपल लेके, तो आपको आसान हो जाएगा। ये टफ इसलिए हुआ आप सब लोगों को क्योंकि हम यूकैरियोटिक जीन के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप यही प्रोकैरियोटिक के साथ करेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि सीधा सीधा है। यूकैरियोट्स में हमेशा आपको कौन मिल रहा है? एक्सॉन्स। जो एक्सॉन तभी आपने रिकॉर्ड किए ना, इतना मेहनत करके वो सब नंबर लिखे, उसके कारण देखो ना, और आपने नंबर इतना सुंदर रखा कि देखिए ना, एक भी स्टॉप कोडॉन नहीं है। इसका मतलब है कि आपने परफेक्ट एक्सॉन ढूंढा उसके अंदर से, और उसके अंदर से भी एक्सॉन सीडीएस ढूंढा। ये सीडीएस है एक्चुअली कोडिंग सीक्वेंस, आपने उसका एग्जैक्ट कोडिंग सीक्वेंस ढूंढ लिया है 252 से लेके 1052।
यानी ये सीक्वेंस जो है आपके जीन के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, इस तरह से। और कोई क्वेश्चन है? सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमने फर्स्ट प्रोसेस में हमने वो प्रोटीन निकाला था, उसका सीक्वेंस काफी छोटा था, हाँ हाँ, बट वो प्रोटीन था, मतलब रिजल्ट प्रोटीन था। था। या तो अगर हम अकेले कर रहे होते तो हम सोचते कि वो वही रिजल्ट है, बट आप थे इसलिए हमें पता चला कि वो रिजल्ट नहीं है, इसलिए हमने पूरा रिवर्स प्रोसेस किया। तो हाँ। हम खुद वो कैसे एनालाइज करेंगे कि वो रिवर्स प्रोसेस करना है, वो रिजल्ट सही है या नहीं है? वो चीज थोड़ा लाइक सबसे पहले एक चीज याद रख लो कि जो रिजल्ट आएगा ना प्रोटीन में, उसमें ये 1 से आना चाहिए। ओके, 1 से और मिथियोनिन फर्स्ट होना नहीं, चाहिए। मिथियोनिन की गारंटी नहीं है, मिथियोनिन की जगह और भी दूसरा रह सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, पर आपका मैच ये 1 से होना चाहिए, ठीक है। ये अगर 1 से नहीं है, यहाँ पे कोई 15, 12, 14, 17 आ रहा है, इसका मतलब है कि कंप्लीट नहीं है, कहीं तो भी प्रॉब्लम है, फिर रिवर्स जाओ, समझे। और कम से कम 100 या 150 अमीनो एसिड्स तो होने ही चाहिए, तभी वो प्रोटीन रहेगा। हाँ, ये पॉइंट याद रखना। और ये कोई बुक में नहीं है, ये कोई बुक में नहीं लिखा रहेगा, कितना भी बड़ा तुर्रमखा बुक लिख ले वो ये नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ये प्रैक्टिकली ही समझेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, कल हम इसका और एक घंटा प्रैक्टिस करेंगे ब्लास्ट का, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें भी मैं आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स दूंगा कल, उसके आंसर्स आपको देने हैं, ठीक है। और फिर कल अगर हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट? हाँ, चलिए। Sir, in lecture 2, you say orthologous and पैरालॉगी, paralogous. हाँ। और लेक्चर 5 में भी पैरालॉगस बोला, लेकिन वो दोनों सर कन्फ्लिक्ट है। जो लेक्चर 2 में बताया आपने और लेक्चर 5 में जो बताया, वो दोनों कन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्या? कंफ्यूजन हो सर, ऑर्थोलॉगी मींस विद इन अ स्पीसीज। ऑर्थोलॉगस मतलब आपने लेक्चर 2 में बताया था डिफरेंट स्पीसीज, और नहीं पैरालॉगी बताया था विद इन द स्पीसीज। नहीं नहीं लेक्चर नहीं, 2 में गलत हो गया होगा बोलते बोलते, बट ऑर्थोलॉगी विद इन अ स्पीसीज, पैरालॉगी बिटवीन द स्पीसीज। पैरालॉगी बिटवीन, ओके। हाँ, वो गलती से अगर कुछ हो गया होगा एक्सप्लेनेशन में। अदरवाइज ऑर्थो मीन्स खुद, विद इन, पैरा मीन्स बिटवीन। ओके सर। ठीक है, चलिए स्टॉप करते हैं फिर।